Hello everyone, welcome to the YouTube channel Botany for All. In our today's video, we are going to discuss about the genetic control over the seed dormancy and seed germination process, and particularly one gene that is viviparous1 or VP1 in the maize. So seed is a part of plant which have the embryo, that is the future plant. So embryo will form the next generation of the plant by the process of cell division by forming plumule, radicle. Plumule is going to form the shoot, and the shoot will develop into several branches as well as the leaf and the main stem, whereas the radicle will develop into the root of the next generation plant. So this part, the seed having a vital or the living part, which is generally called the embryo. Just after the fertilization, the product was zygote. The zygote developed into the by the process of embryogenesis into a mature embryo. So whenever the embryo is matured and all conditions are favorable, whenever the conditions are adequate and proper, the seed will try to germinate and it will form the new generation of the plant. But whenever the conditions are not favorable or until the embryo is not matured, the seed will require a state of dormancy also. So basically seed के दो state होते हैं, एक seed dormancy and the second one is seed germination. To start a new generation, a seed have to germinate. So seed germination is a basic process in which the seed or the embryo generally breaks its seed coat and evolve out into a new life. तो उसे हम seed germination कहते हैं. Whenever the conditions are not favorable or whenever the conditions are not adequate or proper or not natural, then the seed remain in a state of quiescent or resting stage. So that resting stage of the seed, whenever the seed is not germinating, either due to unfavorable condition, either due to unnatural condition, so that resting stage of the seed is called seed dormancy. The seed dormancy is not a harmful process, although it is required at a proper conditions, at a proper situations. Like whenever the seed is at the plant, जब तक seed जो होते हैं plant पर होते हैं, तब तक वो germinate नहीं करते, यानी कि precocious germination नहीं होता. The precocious germination, or better we would call it vivipary. Vivipary, which is a process involved in the animals, not seen in the plant. All the exceptions are there, like rhizophora plants as well as some cereals or mainly some crops in which the seeds germinate early. कुछ ऐसे seed या कुछ ऐसे crops होते हैं जिनमें seed जल्दी germinate कर जाते हैं, तो वो exception है, वो vivipary है, वो precocious germination है. अदरवाइज प्लांट के अंदर नेचुरली ये फिनोमेना नहीं होता. सीड जो है वो डिस्पर्स होते हैं, उसके बाद जर्मिनेट करते हैं. सीड्स जर्मिनेट आफ्टर वंस दे डिस्पर्स. सो ये एक्सेप्शनल केस है. और अगर प्रिकॉशियस जर्मिनेशन या विविपेरी प्लांट शो करता है, तो जो स्पेशली क्रॉप्स के अंदर राइजोफोरा एक प्लांट है, मैंग्रोव फॉरेस्ट में पाया जाता है, उनके अंदर तो अडेप्टेशन है कि वहां विविपेरी पाई जाएगी. अदरवाइज किसी भी प्लांट में सीड प्लांट के ऊपर ही जर्मिनेट नहीं करता. यानी सीड को पता होता है कि कब जर्मिनेट करना है, व्हाट इज द राइट टाइम टू जर्मिनेट एंड अप टू व्हाट टाइम द सीड हैव टू बी डॉर्मेंट. तो सीड जो कि प्लांट से अलग हो चुका है पार्ट, या जब तक प्लांट से जुड़ा भी हुआ है, उसके अंदर भी हार्मोन्स जो है वो कंट्रोल करते हैं सीड की डोरमेंसी को या सीड के जर्मिनेशन को. सो सीड जर्मिनेशन इज अ सिंपल प्रोसेस इन विच द सीड जर्मिनेट at a particular time whenever the conditions are favorable or whenever the plant wants to achieve a new life. Seed dormancy is the another state in which the seed remain in a resting stage due to unfavorable conditions or any kind of chemicals or any kind of the mechanical pressure like hard seed coat or whatever. So whenever the seed is having resting stage or अनेबल टू जर्मिनेट, जब तक सीड नहीं जर्मिनेट कर पा रहा, मान लीजिए कंडीशंस फेवरेबल हैं, फिर भी कभी कभी सीड जर्मिनेट नहीं कर पाते, तो वो भी डोरमेंसी कहलाएगी. तो जब कंडीशंस फेवरेबल है, टाइम भी आ गया है जर्मिनेट करने का और फिर भी डोरमेंसी बनी रहे, यानी फिर भी सीड जर्मिनेट ना करे, तब तो ये हार्मफुल प्रोसेस है. Otherwise, seed dormancy is a beneficial process because it prevents the precocious germination. अगर सारे कंडीशंस प्रॉपर रहे, जिब्रेलिन हार्मोन बना रहा, तो सीड प्लांट पर ही जर्मिनेट कर सकता है. अर्ली स्प्राउटिंग हो सकती है जो कि क्रॉप लॉस को कॉज करती है. तो क्रॉप लॉस से बचाने का काम भी एक प्रोसेस करता है सीड डोरमेंसी. सो वी विल सी दैट व्हाट आर द हार्मोन्स एंड व्हाट आर सम जीन्स इन्वॉल्वड इन दिस प्रोसेस, दैट इज द सीड डोरमेंसी एज वेल एज द सीड जर्मिनेशन. At talking about the quick overview, you have earlier also studied in the previous classes or the lower classes that seed dormancy is caused by an hormone ABA, the abscisic acid, whereas the seed germination is caused by the gibberellin. So gibberellin causes the germination, whereas abscisic acid causes the dormancy.
in the seed. So how they are controlled or how they are controlled through various genes, and what are their ratio, how they maintain each other for the seed maturation. There is another process that is called seed maturation. Seed maturation is an essential process which regulates or which balance these two processes. जब भी seed dormancy बनी रहती है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद डोरमेंसी ब्रेक होती है और सीड को जर्मिनेट कराने के लिए डोरमेंसी जो अपने आप ब्रेक होती है. सो दैट इज कॉल्ड सीड मैच्योरेशन. व्हेनेवर द सीड मैच्योर, इट विल जर्मिनेट. Until the seed maturation is not achieved, that will likely to be or preferred to be live in a dormant stage. तो उन दोनों के बीच का एक बैलेंस है सीड मैच्योरेशन. सीड मैच्योरेशन एक फिनोमेना होता है जहां प्लांट या जो सीड है अपने आप को कंट्रोल करता है कि हमेशा डोरमेंसी में भी ना रहे और अर्लियर जर्मिनेशन भी ना करें. So whenever the proper conditions and the proper time will be achieved, the seed maturation will be occur, or seed maturation will also be achieved. So seed maturation is a good process which control these two processes and make a balance between these two processes, that is the seed dormancy as well as the seed germination. So let's look out the process at the gene level. Just we have discussed that what is seed maturation. The seed maturation is a healthy state, or it is a state of optimum dormancy, which is required to keep the dormancy until the conditions are not favorable or until the time period is not proper. Second thing, seed maturation refers to the state of germination also. Whenever the seed remained dormant for a while or for a time, whenever the conditions were not favorable, and after that, when the conditions become favorable, the seed starts to germinate, or the seed now will germinate. So this is called seed maturation. So in the seed maturation, both abscisic acid as well as gibberellin are involved, and the balance of both of them. जब तक सीड डॉर्मेंट है, एबीए जो है मैक्सिमम रहेगा, यानी एबीए का रेशो ज्यादा रहेगा. जैसे ही सीड जर्मिनेट करने लगता है तो एबीए सप्रेस होने लगेगा और जिब्रेलिन जो है वो हाई होगा. यानी कि डॉर्मेंसी के दौरान, सपोज दिस इज अ स्टेट ऑफ डॉर्मेंसी, सो दैट टाइम एबीए विल बी हायर. So this is AB and this is gibberellin. But at the time of germination, the gibberellin will be higher, whereas the ABA will be suppressed. So hormones में भी हमने ये पढ़ा है. We can just summarize this thing that they both are antagonist to each other. जो ABA और gibberellin होते हैं केवल सीड जर्मिनेशन में ही नहीं, जो डॉर्मेंसी प्रोसेस है उसमें भी बिल्कुल अपोजिट होते हैं. एपिकल बड डॉर्मेंसी को कोज करता है एबीए, जबकि बड डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है जिब्रेलिन. तो अपोजिट है, जस्ट एंटागोनिस्ट एक दूसरे के. जैसे ही सीड जर्मिनेट करने लगता है, जिब्रेलिन का लेवल बढ़ने लगता है, और जब तक सीड डॉर्मेंट है तब तक एबीए ज्यादा रहता है. तो दोनों का जो कंट्रोल है, दोनों का जो रेशियो है, जिब्रेलिन एबीए का रेशियो, वो सीड मैच्योरेशन को क्या करता है, प्रमोट करता है. यानी कि एडिक्वेट स्टेज में, एक अच्छे प्रॉपर स्टेज में मेंटेन करके रखेगा. जब तक उसको जर्मिनेट नहीं होने देना, एबीए मेंटेन रहेगा. जैसे जर्मिनेशन की तरफ जाते हैं तो जिब्रेलिन जो है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती है, और फिर जिब्रेलिन डिफरेंट रिस्पॉन्सिव जीन्स को या अलग अलग तरह के प्रोटीन्स को एक्टिवेट करके सीड जर्मिनेट कराने का काम करता है. जिब्रेलिन कैसे सीड जर्मिनेशन करता है उसका भी एक ओवरव्यू हम देख लेते हैं, क्विक ओवरव्यू. जो एंडोस्पर्म होता है किसी भी सीड के अंदर, जो फूड रिजर्व है एंडोस्पर्म, उसके बाहर एक लेयर होती है, मेनली मोनोकॉट्स के अंदर एल्यूरोन लेयर. तो एल्यूरोन लेयर के अंदर काफी सारे प्रोटीन या बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं. उन एंजाइम्स को फ्री करने का, वो डाइजेस्टिव एंजाइम है. एंडोस्पर्म में जो भी फूड है, मान लीजिए वहां पर लाइपे जो है लिपिड्स हैं या कार्बोहाइड्रेट्स हैं या अमाइलेज है, तो इस मतलब जो है स्टार्च सॉरी या सुक्रोज है, तो फूड पार्टिकल जो भी एंडोस्पर्म में है वो फ्री स्टेट में नहीं है, उनको ब्रेक डाउन करना पड़ता है. उनको ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम होते हैं एल्यूरोन लेयर में. एल्यूरोन लेयर जो कि प्रोटीनेशियस लेयर है, तो एंजाइम्स भी प्रोटीन है, वो वहां पर प्रेजेंट है. जिब्रेलिन बेसिकली क्या करते हैं, जिब्रेलिन उन एंजाइम्स को फ्री कर देते हैं, यानी उनको एक्टिवेट करते हैं. तो सुक्रेज, अमाइलेज, लाइपेज, प्रोटीएज, ये सारे डाइजेस्टिव एंजाइम है जो एंडोस्पर्म में जितना भी फूड है उसको डाइजेस्ट करके अवेलेबल कराते हैं एम्ब्रियो को. एम्ब्रियो को जैसे ही फूड मिलने लगता है उसको पावर यानी एनर्जी मिलेगी, और वो सेल डिवीजन करके एम्ब्रियो को जर्मिनेट करा देगा, यानी सीड को जर्मिनेट कराएगा. तो जिब्रेलिन डायरेक्टली जर्मिनेशन नहीं कर रहे, जिब्रेलिन फ्री करते हैं एल्यूरोन लेयर से डाइजेस्टिव एंजाइम्स को. इससे मोबिलाइजेशन ऑफ फूड होता है. वो फूड जो यहाँ अवेलेबल था वो मोबाइल यानी कि वो मूव करता है एम्ब्रियो की तरफ, और सीड जो करे होते हैं वो जर्मिनेट करते हैं. तो जिब्रेलिन सीड जर्मिनेट कराता है, जबकि एब्सिसिक एसिड सीड को डोरमेंट रखते हैं. तो देखिए, जब डोरमेंसी बनी रहती है यानी सीड मैच्योरेशन से पहले,
एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि सीड अगर स्टार्टिंग डेज में ही जर्मिनेट हो जाएगा, यानी कहते हैं ना अर्ली स्प्राउटिंग होती है तो भी लॉस होना है, तो अगर वो प्लांट के ऊपर ही जर्मिनेट कर जाता है तो वो फ्यूचर प्लांट नहीं बन सकता, क्योंकि उसके पास अभी प्लांट का ही शेल्टर है, किसी सॉइल में वो नहीं है और जर्मिनेट करने की एनेबल वो नहीं रहता। तो उसके लिए क्या होता है, एबीए के दो पीक आते हैं, 25 डेज आफ्टर द पॉलिनेशन, डीएपी का मतलब है डेज आफ्टर पॉलिनेशन, तो 25 दिन के बाद लगभग पॉलिनेशन होने के बाद एबीए की कंसेंट्रेशन हाई बनी रहती है, उस टाइम पर भी जो है सीड बिल्कुल जर्मिनेट नहीं करेगा। उसके बाद कंटिन्यूअली मेंटेन तो रहता है, लेकिन फिर से एक पीक आता है, यानी और एक कंसेंट्रेशन आती है 35 से 40 डेज के बीच में। 35 से 40 दिन पर भी एबी हाई बना रहता है, यानी तब तक भी पॉलिनेशन के बाद सीड जर्मिनेट नहीं करता। तो ये नेचुरल अडेप्टेशन है, नेचर ने अपने आप बनाया है, एबीए जो है सीड के अंदर सीक्रेट होता है अपने आप उस टाइम पर, यानी पॉलिनेशन के लगभग 40 दिन तक जिब्रेलिन नहीं बनता सीड में, बनता भी है तो बहुत कम अमाउंट में। इसका मतलब एबीए ज्यादा बना रहता है, एबीए ज्यादा बना रहेगा तो सीड डॉर्मेंट स्टेज में रहेगा। अगर इससे भी ज्यादा पीक आते हैं एबीए के, यानी एबीए मान लीजिए 60 डेज तक है, तो फिर ये कंडीशन अच्छी नहीं है, इसका मतलब सीड जो है वो जर्मिनेट नहीं करने वाला, वो जो है पोस्ट मतलब जो है मिड डोरमेंसी स्टेज में चला गया है इस वक्त, यानी 60 डेज भी अगर पीक बना है एबीए का, हाई कंसेंट्रेशन है, तो उस टाइम पर जर्मिनेशन कराना बहुत मुश्किल है या इम्पॉसिबल है, तो तब वो कंडीशन हार्मफुल है। अदरवाइज 40 डेज तक एक नॉर्मल बात है कि सीड जर्मिनेट नहीं करेंगे। सो इसके बाद अगर रहता है तो इसका मतलब सीड डोरमेंट ही रहेगा, जर्मिनेट नहीं करेगा। तो एब्सिसिक एसिड और जो जिब्रेलिन है वो एंश्योर करते हैं सीड मैचुरेशन को। कुछ जीन्स के बारे में बात करते हैं, ऐसे जीन जो सीड को डोरमेंट रखने वाले रिस्पॉन्सिव जीन्स को एक्टिवेट करेंगे। अब बेसिकली मैं पहले सीड डोरमेंसी की बात कर रहा हूं, तो वो सारे जीन्स एब्सिसिक एसिड से असिस्टेड होंगे, क्योंकि एब्सिसिक एसिड सीड को डोरमेंट रखता है, उसे जर्मिनेट नहीं होने देता। तो सीड डोरमेंसी में एक जीन होते हैं ABI5, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में सिग्नलिंग में भी बताया था, एब्सिसिक एसिड इनसेंसिटिव 5। तो ABI5 का मतलब एब्सिसिक एसिड इनसेंसिटिव 5, ये एक जीन है जो रिस्पॉन्सिव जीन्स दूसरे जीन्स को एक्टिवेट करेगा। अब अच्छा, रिस्पॉन्सिव जीन या रिस्पॉन्स फैक्टर्स का क्या मतलब होता है? रिस्पॉन्स फैक्टर एक डीएनए का सेगमेंट है, ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर हैं जिनका न्यूक्लियस में जाकर ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा और वो अपना कोई प्रोटीन बनाएंगे। तो हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि ABI5 जीन जो है वो रिस्पॉन्सिव प्रोटीन्स को या रिस्पॉन्सिव जीन्स को एक्टिवेट करेगा सीड के अंदर। उन रिस्पॉन्सिव प्रोटीन्स का काम ये रहेगा कि वो सीड को डोरमेंट रखेंगे। तो ABI5 जीन जो है एब्सिसिक एसिड इंसेंसिटिव 5 जीन, ये ABA के आने पर, यानी जब जब ABA रहता है तो ये एक्टिवेटेड रहता है। अब ABI5 एब्सिसिक एसिड इंसेंसिटिव 5 जब तक एक्टिवेटेड है तब तक ABA जो है वो मतलब जो सीड है वो डोरमेंट रहेंगे। ABI5 को मदद करने वाले कुछ जीन है, जैसे ABI3 एब्सिसिक एसिड इंसेंसिटिव 3, AP2 B3 टाइप, तो AP2 भी एक टाइप है, B3 टाइप भी जीन्स है, ये स्पेसिफिक जीन नहीं है, जीन्स के टाइप हैं। तो ये कुछ और जीन्स है जो हेल्प करते हैं ABI5 को, यानी वही काम करेंगे। अब वही काम क्या? सीड को डोरमेंट रखना। ये सभी जीन जो है ABI या ये जो ABI3 है, ये अरेबिडोप्सिस प्लांट में स्टडी किए गए हैं। अरेबिडोप्सिस जो है प्लांट फिजियोलॉजी में एक मॉडल प्लांट है जो जेनेटिक रिसर्च के लिए यूज किया जाता है। तो अरेबिडोप्सिस प्लांट के अंदर ये सारे जीन जो है डिस्कवर या जो है स्टडी किए गए थे। तो यहाँ पर एक फैक्टर हमने एक जीन स्टडी किया ABI5, जो कंट्रोल करता है उन रिस्पॉन्सिव प्रोटीन्स को जो सीड को डोरमेंट रखना चाहेंगे। हम आज के वीडियो में पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं VP1 जीन के बारे में। तो विविपैरस-1 एक जीन है जो सीड को डोरमेंट ही रखता है। VP1 एक जीन है जो सबसे पहले स्टडी किया गया था सीड डोरमेंसी के रेफरेंस में, यानी ऐसा पहला जीन है जो सीड डोरमेंसी कॉज करने के लिए स्टडी किया गया था, और वो भी डिस्कवर या स्टडी किया गया था मेज प्लांट में। मेज जिसे हम मक्का भी कहते हैं, या हमारा जो जी मेज बॉटनिकल नेम है, तो वहां से डिस्कवर किया गया था VP1 जीन, जिसका फुल फॉर्म है विविपैरस-1। तो नाम से ही पता चलता है कि विविपैरस कंडीशन ये कॉज कर रहा है। देखिए, ज्यादातर जीन्स के नाम म्यूटेशन केस पर भी हो सकते हैं, बट यहाँ नॉर्मल केस पर है कि विविपैरस का मतलब है विविपैरी ये कॉज करेगा। अब विविपैरी क्या होती है? प्रिकॉशियस जर्मिनेशन, सॉरी ये म्यूटेशन केस पर ही है, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। विविपैरस-1 जो है वो विविपैरी से प्रिवेंट करता है। विविपैरी का मतलब अर्लियर जर्मिनेशन, यानी इसका नाम भी म्यूटेशन केस पर है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कुछ जीन्स या ज्यादातर जीन्स का नाम म्यूटेशन केस पर होता है, कुछ का म्यूटेशन केस के अलावा नॉर्मल केस पर भी हो सकता है। मैं पहले भी एग्जांपल बताते रहा हूं, जैसे टेल लेस एक जीन है। जब ड्रोसोफिला का हम डेवलपमेंट पढ़ते हैं तो टेल लेस जीन का काम होता है टेल को बनाना, जबकि नाम से पता चलता है कि वो टेल नहीं बनाएगा, टेल लेस। तो वो म्यूटेशन केस पर है कि वो म्यूटेट हो जाएगा तब वो टेल नहीं बनाएगा, यानी नॉर्मल वो टेल बनाएगा। तो यहाँ विविपैरस-1 का मतलब है जब वो नॉर्मल है तो वो विविपैरी को इनहिबिट कर रहा है, जब वो म्यूटेट हो जाएगा तब वो विविपैरी करेगा,
ठीक है, तो विविपेरी का मतलब होता है अर्लियर जर्मिनेशन। अब अगर अर्लियर जर्मिनेशन हो रहा है इसका मतलब एबीए तो नहीं हो सकता वहां, क्योंकि एबीए तो जर्मिनेशन को इनहिबिट करते हैं। तो वीपी वन अर्लियर जर्मिनेशन यानी कि विविपेरी को इनहिबिट करते हैं। अच्छा, अगर हम वीपी1 को म्यूटेट कर देंगे, अगर हम विविपेरस 1 जो कि मेज में डिस्कवर किया गया था उसे म्यूटेट कर देंगे, तो पहले ये विविपेरी को प्रिवेंट कर रहा था, अब ये विविपेरी को कॉज करेगा। इसी कारण म्यूटेशन केस पर इसका नाम है। तो वीपी1 जो कि मेज से डिस्कवर किया गया है, ये एक इंपॉर्टेंट जीन है जो सीड डोरमेंसी कॉज करता है। वीपी1 रिक्रूट करता है कई तरह के प्रोटीन्स को, जैसे एलईए को भी, लेट एम्ब्रियोजेनेसिस अबंडेंट। जो एलईए है ये एबीए के फंक्शंस में भी हमने पढ़ा हुआ है। लेट एम्ब्रियोजेनेसिस अबंडेंट नाम से ही पता चलता है लेट एम्ब्रियोजेनेसिस कराएंगे, यानी कि लेट सीड जर्मिनेशन कराएंगे। तो वीपी1 जो विविपेरिस कंडीशन को प्रिवेंट करता है, सीड को ज्यादा से ज्यादा डोरमेंट रखता है, उसे जर्मिनेट नहीं होने देता प्लांट पर। अगर वीपी1 नहीं रहेगा, देखिए अगर विविपेरिस 1 जीन नहीं रहेगा तो जो मतलब जो फ्रूट होता है मक्के का, जिसे कोब कहते हैं, उसमें से सीड तुरंत वहीं जर्मिनेट हो जाएगा प्लांट पर ही, और जब प्लांट पर ही जर्मिनेट हो जाएगा तो ये विविपेरी कहलाएगी। यानी विविपेरी को रोकने का काम करते हैं विविपेरिस 1 जीन, वीपी1 जीन। तो वीपी1 जीन को कौन एक्टिवेट करता है? उनको एक्टिवेट करता है एबीए। जब तक एब्सिसिक एसिड है वीपी1 बना रहेगा, और वीपी1 बना रहेगा तो अर्लियर जर्मिनेशन नहीं होगा, यानी कि सीड डोरमेंसी भी बनी रहेगी। तो अगर म्यूटेशन केस पूछा जाए कि वीपी1 अगर म्यूटेट हो जाएगा तो क्या होगा, तो सीड जर्मिनेट कर जाएगा, और अगर नॉर्मल है तो सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। देखिए जैसे ABI3 है, ABI5 है, एब्सिसिक एसिड इंसेंसिटिव 3 एक होमोलॉग है वीपी1 का ही। वीपी1 एक ऐसा जीन है मेज प्लांट के अंदर जो सीड डोरमेंसी कॉज करता है, जबकि ABI3 एक ऐसा जीन है जो अरेबिडोप्सिस प्लांट के अंदर सीड डोरमेंसी को कॉज करता है। तो बिल्कुल सेम बात है, अरेबिडोप्सिस में उसी जीन को हम ABI3 कहते हैं, जबकि मेज के अंदर हम उसी जीन को वीपी1 के नाम से जानते हैं। तो वीपी1 इज मेनली फॉर मेज प्लांट और डिस्कवर्ड इन द मेज प्लांट। अगर लेस वीपी1 रहेगा, अगर वीपी1 कम से कम रहेगा, तो वीपी1 का काम सीड डोरमेंसी को प्रमोट, सीड डोरमेंसी कॉज करना था। तो अगर बहुत कम है तो सीड जर्मिनेट करेंगे अर्ली। इफ देयर इज मोर एंड मोर वीपी1, तो वीपी1 का काम है सीड को डोरमेंट रखना, तो मोर डोरमेंसी रहेगी। ओके और अगर डोरमेंसी फिर भी कंटिन्यू रहती है, कई बार क्या होता है डोरमेंसी ओवरकम नहीं होती फेवरेबल कंडीशंस में भी, तो ऐसा इसलिए होता है कि एबी का कंसंट्रेशन बहुत हाई रहेगा। ठीक है, एबी अगर कंसंट्रेशन हाई रहता है तो जो है ओवर एक्सप्रेशन होता है कि इनका SNRK2 का, ठीक है, जैसे ABI5 का, ABI3 का, ये हमने सिग्नलिंग में भी पढ़े हैं। SNRK2 जो होते हैं ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं जो एबीए के इफेक्ट को कॉज करते हैं। तो अगर एबी बहुत ज्यादा बना रहता है तो ये सारी चीजें एक्टिव रहेंगी, और ये एक्टिव रहेंगे तो आप जानते हैं इनका काम क्या है। ठीक है, इनका काम होता है सीड को डोरमेंट रखना। एक और होता है AIP, ABI3 इंटरेक्टिंग प्रोटीन। तो ये कुछ ऐसे जीन्स हैं मेनली जो एक्टिवेटेड रहते हैं एबीए हाई होने पर, और एबीए हाई है तो ये एक्टिवेटेड रहेंगे, तो सीड को भी डोरमेंट रखेंगे ज्यादा से ज्यादा। अगर डोरमेंसी ओवरकम की जाती है, यानी कि मान लीजिए डोरमेंसी अब ब्रेक होने वाली है, जिब्रेलिन आने वाला है और सीड डोरमेंसी ब्रेक होकर सीड जर्मिनेट होने वाला है, तो अपोजिट केस होता है। उस केस में जब एबीए कम हो चुका तो ये सारे इनएक्टिव हो जाते हैं, और ये इनएक्टिव हो जाएंगे तो इनका काम सीड डोरमेंसी कॉज कराना वो भी इनएक्टिव होएगा, यानी कि सीड डोरमेंसी वो ओवरकम होने लगेगी। तो ये भी इस तरह से भी आप रिलेट कर सकते हो जीन लेवल पर। तो कुछ जीन्स जैसे एब्सिसिक एसिड इंसेंसिटिव 5, एब्सिसिक एसिड इंसेंसिटिव 3 and specifically the viviparous 1 gene in the maize, these are the genes, or they are the genetic controller of the process seed dormancy. Now we will talk about the seed germination. So in the process of seed germination, the seed or the embryo germinates to form a new plant. तो seed germination को जिब्रेलिन हार्मोन कॉज करते हैं, जबकि डोरमेंसी को एब्सिसिक एसिड जो है वो कॉज करते थे। जिब्रेलिन हार्मोन जो होते हैं वो मोबिलाइजेशन ऑफ फूड कॉज करते हैं। एंडोस्पर्म में डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सीक्रेट करते हैं। मान लीजिए ये एंडोस्पर्म है, तो मोनोकॉट्स के अंदर एक एल्यूरोन लेयर है, ठीक है,
या डायकॉट प्लांट्स के अंदर भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स को ये सीक्रेट करते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करेंगे, जैसे लाइपेज है वो लिपिड को ब्रेक डाउन करेंगे, प्रोटीज प्रोटीन्स को करेंगे, अमाइलेज जो है वो स्टार्च को ब्रेक डाउन करेगा, तो सुक्रेज जो है वो सुक्रोज को ब्रेक डाउन करेगा। तो इस तरह से डाइजेस्टिव एंजाइम उस फूड को सीक्रेट करके एम्ब्रियो को प्रोवाइड करते हैं और एम्ब्रियो जर्मिनेट हो जाता है। सो बेसिकली वी कैन कंक्लूड दैट जिब्रेलिन कॉजेज द mobilization of the food by activating the digestive enzymes and thus the seed germinate। तो सीड जर्मिनेट कराने का काम जो है वो जिब्रेलिन हार्मोन करता है। कुछ प्रोटीन या कुछ जीन्स हैं, ये हमने बायोसिंथेसिस ऑफ जिब्रेलिन में भी पढ़ा है। एक एंजाइम या प्रोटीन होता है GA3 ऑक्सीडेज, एक होते हैं GA20 ऑक्सीडेज। ये एंजाइम्स या ये जो प्रोटीन है या जो ये जीन्स रहे होंगे जिनसे प्रोटीन बने, ये एक्टिवेट करते हैं जिब्रेलिन के सिंथेसिस को। तो हम जर्मिनेशन में इन दो प्रोटीन्स का नाम पढ़ सकते हैं। अगर ये जिब्रेलिन को एक्टिवेट करते हैं और जिब्रेलिन सीड को जर्मिनेट कराता है तो डायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि GA3 ऑक्सीडेज और GA20 ऑक्सीडेज भी इस तरह से लिखा जाता है, ऑक्स करके। तो ये भी और GA20 ऑक्सीडेज भी ये जिब्रेलिन को प्रमोट करते हैं, तो ये सीड जर्मिनेशन को भी प्रमोट करेंगे, जैसे कि VP1, जैसे कि ABI3, ABI5, इस तरह के जीन सीड डोरमेंसी को प्रमोट कर रहे थे। तो इस तरह के प्रोटीन्स जो हैं ये जर्मिनेशन को प्रमोट करेंगे। एक और होता है GA2 ऑक्सीडेज, ये जिब्रेलिन बायोसिंथेसिस का इनहिबिटर है। अब क्योंकि ये इनहिबिटर है और जिब्रेलिन नहीं बनेगा तो यानी कि सीड जर्मिनेशन भी नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं GA2 ऑक्सीडेज जो है ये सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है। तो ये उनका साथी है एब्सिसिक एसिड वालों का। अगर GA2 ऑक्सीडेज जो है वो म्यूटेटेड है, तो देखो नॉर्मल काम है GA2 ऑक्सीडेज का सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करना। अगर ये म्यूटेट कर दिया जाए तो ये सीड जर्मिनेशन को कॉज करता है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि GA2 ऑक्सीडेज अगर म्यूटेटेड है तो ये सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करेगा। अगर नॉर्मल GA2 ऑक्सीडेज है तो ये सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करेगा। दिस इज वन कंसेप्ट। एंड सिमिलरली GA3 ऑक्सीडेज एंड GA20 ऑक्सीडेज वो जो होते हैं प्रमोट करते हैं नॉर्मली, अगर वो म्यूटेट कर दिए जाएं तो वो फिर क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे। तो सीड जर्मिनेशन में ये कुछ एंजाइम्स हैं या ये कुछ प्रोटीन्स हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे जो है डेला जो इनहिबिटर होते हैं, डेला विच आर प्रोटीन्स और इनहिबिटर्स ऑफ द जिब्रेलिन, वो कैसे सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करते हैं। देखिए डेला जो होते हैं इनहिबिटर होते हैं जिब्रेलिन के। तो D8 और D9 ये डेला हैं मेज प्लांट के स्पेसिफिकली। अब डेला का काम होता है इनहिबिट करके रखना जिब्रेलिन को, या जो है रिस्पॉन्स फैक्टर्स को, नॉट जिब्रेलिन। जो जिब्रेलिन के रिस्पॉन्स फैक्टर है, मान लीजिए एक रिस्पॉन्स फैक्टर है जो सीड जर्मिनेशन कराने वाला था, सीड जर्मिनेशन कराने वाले रिस्पॉन्स फैक्टर को अगर D8 और D9 बने हुए हैं तो वो इनहिबिट करके रखेंगे, यानी D8 और D9 नहीं जर्मिनेट होने देंगे सीड को। अगर म्यूटेट कर दिया जाए D8 और D9 को तो बेसिकली यहाँ म्यूटेशन नहीं, हमने जिब्रेलिन की सिग्नलिंग पढ़ी है, वहां पर डिग्रेडेशन होता है, यूबिक्विटिन मीडिएटेड डिग्रेडेशन। तो डेला प्रोटीन्स को D8 और D9 को जब क्लीव कर दिया जाता है, अब ऐसा डिग्रेडेशन होता है कब, रिसेप्टर डिग्रेड करता है खुद, ऐसा होता है जब जिब्रेलिन आ जाता है। तो जिब्रेलिन के आ जाने पर D8 और D9 इनएक्टिव हो जाएंगे, टूट जाएंगे। टूटने के कारण जैसे ही डेला इनएक्टिव होता है, इसको कैपिटल लिखेंगे क्योंकि ये सिंगल लेटर कोड अमीनो एसिड्स के, तो डेला जैसे ही इनएक्टिव होते हैं, ठीक है, तो डेला इनएक्टिवेट होने, देखिए डेला क्या है, इसके लिए आप जिब्रेलिन की सिग्नलिंग पढ़ें। डेला एक इनहिबिटरी प्रोटीन है जिब्रेलिन की सिग्नलिंग का, ठीक है। तो यहां पर जो डेला प्रोटीन्स हैं जैसे कि D8 या D9 मेज के डेला प्रोटीन्स हैं, ये इनहिबिटर होते हैं। ये जैसे ही डिग्रेड कर दिए जाते हैं जिब्रेलिन के आ जाने पर, तो डिग्रेड होने पर ये इनएक्टिव जो होने पर ये एक्टिवेट करते हैं एक प्रोटीन GAMYB1 को या KGM1 को। अब ये पॉजिटिव प्रोटीन्स हैं। GAMYB या KGM1 क्या करते हैं, ये सीड जर्मिनेट कराने वाले रिस्पॉन्सिव प्रोटीन्स या रिस्पॉन्सिव जीन्स को फॉर्म करते हैं। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं जब डेला डिग्रेड कर दिए जाएंगे तब सीड जर्मिनेट हो पाएगा। जब तक डेला डिग्रेड नहीं है, यानी कि D8 और D9 बने हुए हैं मेज में, तब तक सीड जर्मिनेट नहीं कर सकता, क्योंकि D8 और D9 जो डेला है वो इनहिबिट करके रखते हैं रिस्पॉन्सिव जीन्स को। पहले इन्हें डिग्रेड किया जाए, और डिग्रेड कब होंगे, जब जिब्रेलिन आ जाएगा। सिमिलरली बार्ले के अंदर SL1 सिलेंडर 1 जो होते हैं, ये डेला प्रोटीन्स है, यानी ये जब तक एक्टिव हैं तब तक सीड जर्मिनेट नहीं करेगा, तो इन्हें भी डिग्रेड किया जाए। और इनका डिग्रेडेशन कब होता है, जिब्रेलिन के आ जाने पर। तो जैसे जिब्रेलिन आया SLN1
इनएक्टिव हो गया और बाकी सारे रिस्पॉन्सिव जीन्स एक्टिव होकर सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करते हैं। तो ये भी कुछ जीन्स है D8, D9 या SLN1। मेज के अंदर D8, DA9 और बार्ले के अंदर SLENDER1 जो सीड जर्मिनेशन को रोक कर रखते हैं और इनके डिग्रेड कर देने पर, इनको इनएक्टिव करते ही एक नया प्रोटीन गैम YB या KGM एक्टिवेट होता है जो सीड जर्मिनेशन के प्रोटीन्स को या रिस्पॉन्सिव जीन्स को एक्टिवेट करता है। तो ये कहानी है जर्मिनेशन की। इससे पहले हमने डोरमेंसी के बारे में भी पढ़ा। एक जीन जो कि VP1 जीन है उसके बारे में हमने पढ़ा, विविपेरस1, जो विविपेरी को बचाता है, यानी विविपेरस कंडीशन को इनहिबिट करता है ताकि प्लांट के ऊपर ही सीड जर्मिनेट ना कर जाए। जब वो म्यूटेट होते हैं VP1 तब वो विविपेरस कंडीशंस को कॉज करते हैं। तो ये था डोरमेंसी और जर्मिनेशन के बारे में कि जेनेटिक कंट्रोल क्या है, कुछ ऐसे जीन्स जो इन दोनों प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। हार्मोनल लेवल पर एब्सिसिक एसिड सीड को डोरमेंट रखते हैं, जबकि जिब्रेलिन जो होते हैं वो सीड को जर्मिनेट करते हैं। कुछ और जीन्स के मैं नाम लिख रहा हूं जो सीड डोरमेंसी को प्रमोट करते हैं एब्सिसिक एसिड की वजह से। कभी कभी इन जीन्स के बारे में भी पूछा जाता है। LEC1 लीफी कोटिलिडन 1, LEC2 और फुस्का या FUSCA3 या FUS3 भी इसे कहते हैं, FUS3। तो ये भी अरेबिडोप्सिस प्लांट के हैं, ना कि मेज के। अरेबिडोप्सिस प्लांट के अंदर ये कुछ और जीन है जो प्रमोट करते हैं ABI3 को, यानी एब्सिसिक एसिड इंसेंसिटिव 3। अब ABI3 का काम अगर आपको याद हो सीड को डोरमेंट रखना था, तो ये जो है तीनों जीन ये भी सीड को डोरमेंट रखेंगे। तो VP1 या ABI3 के अलावा 3 जीन और भी हैं जिनका आप नाम याद रख सकते हैं, जो एब्सिसिक एसिड के आने पर प्रमोट होते हैं और सीड डोरमेंसी को भी प्रमोट करते हैं। सो इट वाज अबाउट द जेनेटिक कंट्रोल ऑफ द सीड डोरमेंसी एज वेल एज द सीड germination. So that is all for today. Have a good time.